Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students, and viewers, Assalamu alaikum. We are learning nervous system. In our last lecture, we learned what is nervous system and what are the different types of nervous system, and then the structure of neuron and functions of neuron. Today, we'll learn about the types of neurons and what is a nerve and the types of nerves. But let's first recap what we learned in our last lecture. In our last lecture, uh, we learned the definition of nervous system. As I told you, that it is a vast communication network that coordinates all functions of our body. I gave you an analogy that it is like a postal service in our body, and the neuron is like a postman. Then I told you types of nervous system. There were two types of nervous system. One is central nervous system, also called CNS, and the other is peripheral nervous system, also called PNS, peripheral nervous system. Then central nervous system, I told you, consists of two organs. One is brain, the other is spinal cord, and the peripheral nervous system consists of all parts of our body except brain and spinal cord. In central nervous system, I explained that brain is basically it's protected by our skull, जिसको आप खोपड़ी कहते हैं, and it interprets information, it makes decision and forms memories. तो ब्रेन का क्या काम है कि whatever information it receives, it interprets it, उसकी तशरीह करता है, and it makes decisions based on those interpretations which it makes, and then sends those decisions to the parts of the body, to the muscles or glands, to execute its decisions. So, what kind of information it may receive from the body parts, from the peripheral nervous system? It can receive information like touch. If something or somebody touches your skin, temperature, if there's some heat, you feel heat on your body. So that is also an information. That is sensation. See? So touch, temperature, then is pain. If there is some pain, you have injured yourself. So that sensation of pain is also an information which is communicated to the brain. And then is pressure. If there is some pressure on your body parts, that information is also conveyed to the brain. And then is proprioception. Proprioception is the way your body lies. That is the are you lying spine? Are you lying sideways? That is proprioception. So that kind of information is also communicated to the brain. And then is vibration. If there is some vibration and your body vibrates, that is also those signals also go to the brain, and it interprets and takes decisions and then sends those decisions to the muscles and glands that start to execute the decisions which it has made on the basis of the information which was sent by the body parts. Now, the second part is the spinal cord. Spinal cord is, you know, that it is the continuity of the brain. It starts from the brain stem and it runs inside the spinal column. That is the spinal cord, and it is a bundle of nerves which runs down the back. And it serves as the main highway for messages traveling to and from the brain.
देखें, जो भी मैसेज ब्रेन को जाता है वो डायरेक्ट नहीं जाता आपकी बॉडी पार्ट से, ये थ्रू स्पाइनल कार्ड जाता है, एक्सेप्ट फॉर द क्रेनियल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वहां से डायरेक्ट ब्रेन को जाता है, बट जो स्पाइनल नर्व्स हैं, टोटल बाकी के जितने बॉडी पार्ट्स हैं डाउन हियर, वो सारे बॉडी पार्ट जो हैं वहां से जो मैसेज है वो स्पाइनल कार्ड के थ्रू ब्रेन में जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। पहले स्पाइनल कार्ड में जाएगा। मसलन मैंने आपको जो 6 तरह की सेंसेशंस बताई थी, क्या थी? टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर और प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशंस। तो ये जो आपकी सेंसेशंस हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ये थ्रू स्पाइनल कार्ड ब्रेन को जाएगी। एक तो इसका ये फंक्शन है आपकी स्पाइनल कार्ड का कि ये एक मेन हाईवे है जहां से मैसेज ब्रेन को जाते हैं, और फिर ब्रेन जब मैसेज देगा डिसीजन करके, वो भी स्पाइनल कार्ड के थ्रू वापस आएगा और आपकी बॉडी को जाएगा, मसल्स को और ग्लैंड्स को, टू टेक एक्शन ऑन द डिसीजंस मेड बाय द ब्रेन। एक काम तो ये इसका ये है। एक काम इसका ये है आपकी स्पाइनल कार्ड का, इट कंट्रोल्स स्पाइनल रिफ्लेक्स आर्क्स। अब रिफ्लेक्स आर्क आप आगे जाके पढ़ेंगे क्या है कि sometimes some decisions are taken by the spinal cord itself. It does not send the message to the brain because there is an urgency. ब्रेन में वो मैसेज जाएगा तो टाइम लगेगा, वो फौरी डिसीजन लेने। फॉर एग्जांपल, आपका पाँव जो है वो किसी यानी आग के ऊपर आप रख दिए, फायर के ऊपर रख दिए, बर्न हो गया, तो वो जो मैसेज आया है वहां से आपके जो सेंसरी न्यूरॉन वो जो लेके आए हैं मैसेज आपकी स्पाइनल कार्ड में, तो स्पाइनल कार्ड ने वहीं से एक डिसीजन करके वापस डिसीजन भेज दिया है आपके मसल्स को, आपके हैंड्स को, आपके फुट को, कि फौरन पुल योर फुट, वहां से वापस उठाएं आप अपना पाँव। वो फौरी तौर पे डिसीजन लेना था, इसलिए वो स्पाइनल कार्ड ने ले लिया, ब्रेन को नहीं भेजा। तो ये जो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क्स, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये 2 तरह के काम स्पाइनल कार्ड करती है। एक तो ये हाईवे है, मैसेज दिमाग को जो जाता है वो इसके थ्रू जाता है, और जो मैसेज ब्रेन से वापस आता है मसल्स को और आपकी बॉडी पार्ट्स को, वो भी इसके थ्रू आता है। एक तो ये, और दूसरा क्या करती है ये रिफ्लेक्स एक्शन, खुद डिसीजन लेके तो नीचे डिसीजन कन्वे कर देती है बॉडी पार्ट्स को, मसल्स वगैरह को, ठीक है ना। दूसरा जो पार्ट था इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो मैंने कहा जितने बॉडी पार्ट्स हैं एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, वो बॉडी पार्ट जो हैं उनमें जितनी भी नर्व्स हैं दे फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब उनका क्या काम है? जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, ये मैंने 6 तरह की इंफॉर्मेशन तो आपको बताई थी, ठीक है। टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशन, ठीक है। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो ये बॉडी पार्ट्स जो है ये गैदर करते हैं और फिर ये इंफॉर्मेशन थ्रू स्पाइनल कार्ड भेजते हैं ब्रेन को, ठीक है। और फिर एग्जीक्यूशन, ब्रेन जो डिसीजन करता है उस पर अमल दरामद करना, ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है। वापस डिसीजन आएगा तो वो इधर ही आएगा जहां से इंफॉर्मेशन गई थी, तो इन्होंने ही एक्शन लेना है, इन्हीं हैंड्स ने, इन्हीं फीट ने, ठीक है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है। प्राइमरी कंपोनेंट इसका ये है कि a complex network of nerves, long fibers that branch out from the spinal cord and brain। देखें, ये ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं वो क्रेनियल नर्व्स हैं, या ब्रेन को जो जाती हैं वो क्रेनियल नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स, और जो स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं या स्पाइनल कार्ड को जाती हैं वो स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का, ये सॉरी इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। कि स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो निकलती हैं स्पाइनल कार्ड से,
और क्रेनियम से, क्रेनियम खोपड़ी को कहते हैं ना, कि इसके अंदर स्कल है ना, ये इसको क्रेनियम भी कहते हैं। तो इसके अंदर ब्रेन है। तो ये जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं, यहाँ पे आपके आती हैं फेशियल नर्व्स या ट्राइजेमिनल नर्व्स या वेगस नर्व, ठीक है, इस तरह की नर्व्स आती हैं जो ब्रेन से डायरेक्ट आती हैं, स्पाइनल कार्ड से नहीं आती, उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तो इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक क्रेनियल नर्व्स और एक स्पाइनल नर्व्स। जो आपकी स्पाइन से निकलेंगी वो स्पाइनल नर्व्स हैं, और जो ब्रेन से निकलेगी वो क्रेनियल नर्व्स हैं, ठीक है। और फंक्शन क्या है, इट कनेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसका क्या फंक्शन है कि ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को कनेक्ट करता है टू एवरी सिंगल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को इसने कनेक्ट करना है बाकी बॉडी पार्ट्स के साथ। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है, ठीक है। इट ब्रिंग्स सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कैरीज कमांड्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। आगे है जी न्यूरॉन। फिर हमने पढ़ा था न्यूरॉन कि ये एक मैसेंजर सेल है, यानी जिसको हमने कहा था कि पोस्टमैन है, डाकिया है, पैगाम रसां है, ऐसा सेल है, एक सेल है जो पैगाम लेके जाता है, ठीक है, या पैगाम लेके आता है या पैगाम लेके जाता है, ठीक है, पोस्टमैन है ये। तो आवर ब्रेन हैज अबाउट 86 बिलियन ऑफ न्यूरॉन। सिर्फ दिमाग में हमारे ब्रेन में 86 अरब सेल हैं ये, और हमारा ब्रेन सिर्फ इन्हीं का बना हुआ है, ठीक है। और आगे चल के आप पढ़ेंगे जो न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स जिनसे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बनी है, उस न्यूरॉन की उस किस्म को इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन में कितने हैं, 86 बिलियन, और हमारी स्पाइनल कार्ड में 15 मिलियन जो हमारी स्पाइनल कार्ड में। और जो दूसरे हमारे पेरिफेरल सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स उनको कहते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, और जो ब्रेन से डिसीजन लेके वापस जाते हैं बॉडी में, उनको मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो ये दोनों मिला के 8 to 10 मिलियन एक एस्टिमेट है साइंटिस्ट का, ठीक है, कि 8 to 10 मिलियन वो है। 15 मिलियन जो है इंटर न्यूरॉन्स आपकी स्पाइन में है, यानी स्पाइनल कॉलम में है, और 86 बिलियन आपके ब्रेन में है। तो ये देख लें कि ये कितने न्यूरॉन्स हैं जो आप क्या कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं पूरी बॉडी का। सो देयर ओनली जॉब इज टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम योर बॉडी टू योर ब्रेन एंड फ्रॉम योर ब्रेन बैक टू योर बॉडी। क्या काम है न्यूरॉन का? टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम योर बॉडी टू योर ब्रेन थ्रू स्पाइनल कार्ड एंड फ्रॉम योर ब्रेन बैक टू योर बॉडी, ब्रेन से वापस फिर मैसेज बॉडी को लेके जाना। ये न्यूरॉन का काम है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन हमने पढ़े थे। ये न्यूरॉन हमने देखा था कि ये सेल बॉडी है, इसकी डेंड्राइट्स हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस है, फिर एक्सॉन है, और टर्मिनल एंड्स हैं एक्सॉन के, ठीक है, ये टर्मिनल एंड्स हैं एक्सॉन के, ठीक है। ये डेंड्राइट्स हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके साइटोप्लाज्म है, और बाकी ऑर्गेनेल्स इसके अंदर हैं। यहां से लेके यहां तक एंड तक ये सारा एक्सॉन है। फिर एक्सॉन में ये हमने कहा था इंटरनोड है, ये नोड है, ये इंटरनोड है, ये नोड है, ये इंटरनोड है, ठीक है। तो और ये साइटोप्लाज्म हमने देखा था कि सारे सेल के अंदर होता है, यानी यहाँ भी सेल बॉडी में, इस सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं, सेल बॉडी में भी होता है और इसमें एक्सॉन में भी होता है, और ये टर्मिनल एंड्स हैं। और हमने ये कहा था कि ये रिसेप्टर्स हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है ये न्यूरॉन रिसीव करता है इधर से, और उस जगह से टर्मिनल एंड से इंफॉर्मेशन अगले नेक्स्ट न्यूरॉन को दे देता है। ये जो है ये प्रीवियस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन यहाँ से ये डेंड्राइट्स लेते हैं,
और ये जो टर्मिनल एंड्स हैं नेक्स्ट न्यूरॉन को वो इंफॉर्मेशन सेंड कर देते हैं। तो ये हमने डेंड्राइट्स देखा था कि रिसीव द मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर्स आर टर्मिनल एंड्स ऑफ द प्रीवियस न्यूरॉन। ये ईयर्स मैंने कहा था, ये कान है। सेल बॉडी, फिर हमने कहा था प्रोड्यूसेस एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू कीप द सेल अलाइव। ये जो सेल बॉडी है जो हमने देखी थी ऊपर, ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी जो है, ताकि वो सेल जो है जिंदा रहे न्यूरॉन, और वो जो नर्व इम्पल्स है, जो मैसेज है जो आगे ट्रेवल करना है, मैसेज ने प्रोपिगेट करना है उसके अंदर, एक्सॉन के अंदर, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तो ताकि वो मैसेज भी आगे चल सके और जो सेल है न्यूरॉन जो है वो जिंदा भी रह सके। और फिर एक्सॉन हमने कहा था कैरीज द मैसेज अवे फ्रॉम दी, ये जो आपकी सेंट्रल बॉडी है, ठीक है, तो वहां से मैसेज ये लेके जाता है। ये मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सेल बॉडी जो है, यहां से मैसेज, ये मैसेज रिसीव किया डेंड्राइट्स ने, और यहां पे मैसेज प्रोसेस हुआ। देखें, ये है इनपुट जोन, यहां पे मैसेज आता है, ये है प्रोसेसिंग जोन, यहां पे मैसेज प्रोसेस होता है, और ये है कंडक्शन जोन, ये कंडक्ट, यहां से मैसेज फिर आगे चलता है, कंडक्शन जोन, और ये है ट्रांसमिशन जोन, यहां से आगे ट्रांसमिट होता है अगले न्यूरॉन में। तो ये 4 जोन आप याद रखें, ठीक है। तो ये फिर एक्सॉन जो है ये सेल बॉडी से मैसेज लेके जाता है। फिर हमने माइलिन शीथ पढ़ी थी कि ये जो इसके ऊपर, एक्सॉन के ऊपर सेगमेंट्स में है, वो मैं दिखा देता हूँ। माइलिन शीथ, ये येलो, ये जो है ये माइलिन शीथ है, ये भी माइलिन शीथ है, ये भी माइलिन शीथ है, ठीक है। इसको, ये एक्सॉन के ऊपर रैप की हुई है एक शीट, एक कवरिंग, और ये जो सेल्स इसके ऊपर ये लपेटते हैं, वो अपनी ही मेम्ब्रेन इसके ऊपर लपेटते हैं, और ये जो जो सेल्स, न्यूरॉन्स आपके बॉडी पार्ट्स में होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वो जो इसके ऊपर ये माइलिन शीथ बनाते हैं न्यूरॉन के ऊपर, उन सेल्स का नाम है शवान सेल्स, SCHWANN, शवान सेल्स। वो क्या करते हैं कि अपनी मेम्ब्रेन जो है उसको बार बार ऊपर लपेटते हैं, उसके ऊपर एक ही सेल है शवान जो इसके ऊपर लपेट रहा है, अपनी मेम्ब्रेन को बार बार रैप कर रहा है, ठीक है, उससे माइलिन शीथ बनती है। और उसी के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि जो लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, वो 70 to 80% हैं, और 20 to 30% प्रोटीन्स हैं, ये उसकी मेम्ब्रेन में ही होते हैं। तो ये इसने माइलिन शीथ बना दी। फिर दूसरा जो सेल था शवान, उसने यहाँ पे बना दी, फिर अगला शवान सेल था, उसने यहाँ पे बना दी। ये जो आपकी बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन शीथ बनती है इनके न्यूरॉन्स के ऊपर, यानी जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और मोटर न्यूरॉन्स हैं, उनके ऊपर जो शीथ बनती है वो शवान सेल्स बनाते हैं। मगर जो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में और आपकी स्पाइनल कार्ड में हैं, वो इंटर न्यूरॉन्स हैं, और वो इंटर न्यूरॉन्स के ऊपर जो माइलिन शीथ बनती है वो शवान सेल्स नहीं बनाते, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स उनको कहते हैं, उन सेल्स को ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एक्चुअली ये टाइप्स हैं ग्लायल सेल्स की, ये मैं बाद में एक फुल लेक्चर इसके ऊपर चाहिए। ये ग्लायल सेल्स या न्यूरोग्लाया इनको कहते हैं। तो ये उनकी टाइप्स हैं, और भी टाइप्स हैं उनकी, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडिमल एटसेट्रा। मगर ये दो 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 टाइप्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे, कि शवान सेल जो हैं वो माइलिन शीथ बनाते हैं किन न्यूरॉन्स के ऊपर, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के ऊपर, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है।
और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में और स्पाइनल कार्ड में न्यूरॉन्स हैं, उनका क्या नाम है? इंटरन्यूरॉन्स। उनके ऊपर जो माइलिन शीथ जो सेल बनाते हैं, उनका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। OLIGO, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, DENDROCYTES, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये आगे चल के आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो और ये दरमियान में जो नोड है, ये गैप है, अ स्मॉल गैप बिटवीन टू internodes where the axon is not covered by the myelin sheath, ठीक है, अनमाइलिनेटेड होता है इस जगह पे। ये रीकैप करते हुए टाइम काफी लग रहा है, आई डोंट नो कि नेक्स्ट लेक्चर कितना मैं आपको दे सकूंगा। तो माइलिन शीथ का काम क्या है? इट स्पीड्स अप द मैसेज। जो मैसेज सेल बॉडी से उसने रिसीव किया है, वहां पे माइलिन शीथ एक्चुअली उसकी स्पीड तेज करती है उस मैसेज की। तो इसलिए और ये एक इंसुलेशन टेप होती है ना, जिस तरह आप एक टेप जहां से इलेक्ट्रिक वायर कहीं से नेकेड हो जाती है, अनकवर हो जाती है, तो वहां पे आप टेप लपेट देते हैं, इंसुलेशन टेप। ये माइलिन शीथ बिल्कुल इंसुलेशन टेप है, मगर ये फैट्स की और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। यानी इसके अंदर से करंट पास नहीं करता। ये माइलिन शीथ जो है, इसके अंदर से करंट लीक नहीं करता, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ जाती है, बाहर नहीं निकलता, ठीक है ना। इंसुलेशन टेप है ये। आगे नोड ऑफ रेनवियर, वो मैंने आपको बता दिया है। रेनवियर मैंने कल बताया था कि एक फ्रेंच हिस्टोलॉजिस्ट था और फिजिशियन था। 1878 में उसने वो टिश्यूज की स्टडी कर रहा था, तो उसने ये देखा कि ये जो माइलिन शीथ है ये कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि इसके दरमियान में गैप्स हैं, स्मॉल गैप्स हैं। उन गैप्स को फिर हम आजकल नोड ऑफ रेनवियर उसके नाम पे हम कहते हैं, उसको ऑनर देने के लिए। इंटरनोड वो मैंने बता दिया आपको, माइलिनेटेड सेगमेंट ऑफ द एक्सॉन, जो नोड, दो नोड्स के दरमियान जो होता है, जिसके ऊपर माइलिन शीथ लपेटी होती है, वो इंटरनोड होता है। टर्मिनल एंड्स भी आपने देख लिए, ब्रांच एंड्स ऑफ द एक्सॉन, जो जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। फिर साइनेप्टिक नॉब, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब टर्मिनल एंड की टिप के ऊपर जो एक बल्ब लाइक स्वेलिंग होती है, बल्ब लाइक स्वेलिंग, उसको हम साइनेप्टिक नॉब कहते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल टिप के ऊपर होता है, टर्मिनल एंड की जो टिप, जहां टर्मिनल एंड खत्म हो जाता है, उसकी टिप के ऊपर साइनेप्टिक नॉब होता है। क्या है? एक स्वोलन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, राउंड स्वोलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो और उसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल्स आगे मैंने बताया है कि बहुत छोटे, वेरी स्मॉल सैक, छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं, और उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, ठीक है। विच पास द मैसेज, ये पास की स्पेलिंग गलत है, ये इसको ठीक है जी, विच पास द मैसेज टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये मैंने कल समझाया था कि ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि वो जो साइनेप्टिक नॉब है, उसके अंदर जो साइनेप्टिक वेसिकल है, साइनेप्टिक वेसिकल जो है वो साइनेप्टिक नॉब की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद फिर वो अपने अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, केमिकल्स जो हैं, उनको रिलीज करता है, जो कि डिफ्यूज होके नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स पे चले जाते हैं। वो डेंड्राइट्स को रिसीव कर लेता है वो मैसेज की शक्ल में, ठीक है। और ये दरमियान में जो गैप है दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान में, ये मैंने कल बताया था कि इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, और ये 20 to 40 नैनोमीटर इतना छोटा गैप होता है। नैनोमीटर आप समझते हैं कितना होता है? अगर 1 मीटर के 1 बिलियन पार्ट कर लें, ये 1 मीटर है,
उसके 1 बिलियन 1 अरब हिस्से कर लें तो उसमें जो एक हिस्सा होगा वो 1 नैनोमीटर होगा। तो 20 to 40 नैनोमीटर का गैप होता है वो टर्मिनल एंड्स ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट, वेयर केमिकल्स जंप अक्रॉस, केमिकल्स वहां से डिफ्यूज होके जंप करके अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे चले जाते हैं। नहीं जी, ये हमारा था, हमने रीकैप किया इसको पिछले लेक्चर को। अब यहां से नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं हम, न्यूरॉन्स एंड नर्व्स। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन फंक्शन, कि वो क्या फंक्शन करते हैं, इसकी बुनियाद पर देयर आर 3 टाइप्स, ओनली 3 टाइप्स। पहले हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, दी रिपोर्टर्स, जो रिपोर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। रिपोर्ट, इनको मैंने दी रिपोर्टर्स इसलिए लिखा है कि जो अखबार में रिपोर्टर होता है जो खबर देता है, ये खबर देते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जो कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन या स्पाइनल कार्ड। सेंस ऑर्गन्स जो हैं आपके, क्या है सेंस ऑर्गन्स आपके? स्किन है, ये सेंस ऑर्गन है, पूरे बॉडी के ऊपर चढ़ी हुई है स्किन, ये सेंस ऑर्गन है। नोज सेंस ऑर्गन है, ईयर सेंस ऑर्गन है, आई आपकी सेंस ऑर्गन है, और टंग क्या है? सेंस ऑर्गन है। तो यहां से जो मैसेज जाते हैं, जो मैसेज मैंने आपको बताया था 6 तरह, वो मैसेज जो लेके जाते हैं, जो मैसेज आपकी बॉडी से लेके जाते हैं न्यूरॉन्स, उनका नाम है सेंसरी न्यूरॉन्स। इनको मैंने कहा रिपोर्टर्स। ये कहां लेके जाते हैं? स्पाइनल कार्ड के थ्रू ब्रेन में, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? मैंने एग्जांपल दी है। सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, हे द स्टोव इज हॉट। अब स्टोव के ऊपर आपने हाथ रख दिए तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं, ये उन्होंने मैसेज भेजा है ब्रेन को कि द स्टोव इज हॉट। ये जो हैंड्स को लगा है वो टेम्परेचर, वो हीट, वो जब ब्रेन को भेजी है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू गई है, स्पाइनल कार्ड से होती हुई ब्रेन में, ठीक है। आगे हैं जी मोटर न्यूरॉन्स, दी कमांडर्स। कमांडर जो कमांड करते हैं, हुक्म देते हैं, यानी जो ब्रेन ने डिसीजन किया, वो डिसीजन वापस जब आपकी बॉडी पार्ट्स को उसने देना है, मसल्स को और ग्लैंड्स वगैरह को, वो जिन्होंने वो डिसीजन वापस लेके आना है, उनको कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन मैंने बनाया है ना, यहां पे जो आपको दिखाया है, ये एक्चुअली मोटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन नहीं है। सेंसरी न्यूरॉन की शेप और तरह की होती है, उसको सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं, और ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर का मतलब ये है कि इसके डेंड्राइट्स की ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं, और इसका एक एक्सॉन होता है, और डेंड्राइट्स की ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं। ये मोटर न्यूरॉन है, याद रखना, ये वाला मोटर न्यूरॉन। और जो सेंसरी न्यूरॉन है उसको सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। उसमें एक ही लंबा फाइबर होता है, और उसका जो जो उसके एक साइड पे आपको सेल बॉडी मिलेगी, उस सेल बॉडी से एक ही निकलेगा, और फिर वो बाइफरकेट होके 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक पेरिफेरल ब्रांच बन जाएगी जो कि आपकी बॉडी में आएगी, और एक सेंट्रल ब्रांच बन जाएगी जो कि आपकी स्पाइनल कार्ड के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये है सेंसरी न्यूरॉन, इसको सूडो यूनिपोलर, आगे उसकी आ रही है किस्में, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन जो हैं, ये कमांडर्स हैं, कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन ओब्लिक स्पाइनल कार्ड टू मसल्स ओब्लिक ग्लैंड्स। वहां से मैसेज लेके आते हैं ब्रेन से, स्पाइनल कार्ड से, आपके मसल्स को, और आपकी ग्लैंड्स जो हैं, जो भी ग्लैंड्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, देयर सो मेनी ग्लैंड्स, जैसे लिवर भी एक ग्लैंड है आपका, जो पेंक्रियाज है वो ग्लैंड्स हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड, फ्लां ग्लैंड, ये वो बेशुमार ग्लैंड्स है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये मोटर न्यूरॉन्स क्या कहते हैं मसल को? पुल योर हैंड बैक नाउ।
इसने सेंसरी न्यूरॉन ने क्या बताया था, स्टोव इज हॉट, वो इंफॉर्मेशन गई ब्रेन में, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, इंटरप्रेट किया और डिसीजन किया, और डिसीजन करके वापस डिसीजन वो दिया किसको, मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन ने आके आपको कहा होल्ड योर हैंड बैक नाउ, अपना हाथ ऊपर उठा लो, आपने गर्म तवे के ऊपर ये स्टोव के ऊपर हाथ क्यों रखा हुआ है, पीछे हटाओ। तो ये डिसीजन ब्रेन से वापस कौन लेके आया, मोटर न्यूरॉन। और ये डिसीजन किया किसने ब्रेन के अंदर, ब्रेन किस चीज का बना हुआ है, 86 बिलियन क्या है न्यूरॉन्स, कौन से, इंटर न्यूरॉन्स। ये डिसीजन इंटर न्यूरॉन्स ने किया। ये आपकी स्पाइनल कार्ड में भी इंटर न्यूरॉन्स है कितने, 15 मिलियन, और ब्रेन में भी इंटर न्यूरॉन्स है कितने, 86 बिलियन। द ट्रांसलेटर्स, जो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर गए थे, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, यानी उसको उसकी तशरीह की, फिर उसकी बेसिस पे फैसला लिया, और फिर वो फैसला मोटर न्यूरॉन्स को दिया कि जाके एग्जीक्यूट करवाओ ये फैसला, इस पे अमल दरामद करो। अच्छा जी, दे आर फाउंड ओनली इन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स टू मोटर न्यूरॉन्स। बिल्कुल, ये देखें सेंसरी न्यूरॉन्स ये आपकी बॉडी से आ रहे हैं मैसेज लेके स्पाइनल कार्ड में, और वो मैसेज स्पाइनल कार्ड से ब्रेन को जा रहा है, और ब्रेन से वापस स्पाइनल कार्ड में आया, और स्पाइनल कार्ड से जब वो मैसेज बाहर निकला आपकी बॉडी में जाने के लिए, तो वो मोटर न्यूरॉन को गया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू गया। यानी सेंसरी न्यूरॉन आए, उन्होंने मैसेज किसको दिया, इंटर न्यूरॉन्स को, इंटर न्यूरॉन्स ने फैसला करके मैसेज किसको दिया, मोटर न्यूरॉन्स को। तो ये चेन कैसे बन गई, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन्स दरमियान में आ गए, ठीक है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन आई, एक सेंसेशन आई, वो कोई भी हो सकती है, सेंसेशन ऑफ पेन भी हो सकती है, सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर भी हो सकती है, टच भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो आई, वो सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आए, और किसके पास आई, इंटर न्यूरॉन्स के पास। इंटर न्यूरॉन्स ने उसको ट्रांसलेट करके, इंटरप्रेट करके, उसके ऊपर डिसीजन लेके वापस वही डिसीजन जो था किसको दिया, मोटर न्यूरॉन्स को। तो इस तरीके से यानी जो इंटर न्यूरॉन्स हैं वो दरमियान में हैं, और एक तरफ सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और एक तरफ मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो इंटर न्यूरॉन्स दोनों को कनेक्ट करते हैं, दरमियान में ये हैं, एक तरफ सेंसरी और एक तरफ मोटर न्यूरॉन्स। इनको कहते हैं द थिंकर्स दैट डिसाइड व्हाट एक्शन टू टेक, यानी ट्रांसलेटर्स भी कहा और थिंकर्स भी कहा, ये सोचते हैं कि क्या एक्शन लेना है। अच्छा जी, आगे टाइप, ये थी 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बेस्ड ऑन द फंक्शन, के काम क्या करते हैं। पहली टाइप क्या थी, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करना और वो इंफॉर्मेशन कैरी करना टुवर्ड्स स्पाइनल कार्ड या टुवर्ड्स ब्रेन। और दूसरी किस्म क्या थी, मोटर न्यूरॉन्स, वो जो ब्रेन ने फैसला किया उसको लेके जाना, उस मैसेज को वापस बॉडी पार्ट्स में, मसल्स में और ग्लैंड्स में। और फिर इंटर न्यूरॉन्स, यानी जो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स ने दिया इंटर न्यूरॉन्स को, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया, इंटरप्रेट किया, उसके ऊपर डिसीजन किया और मोटर न्यूरॉन को दे दिया। तो ये 3 तरह के जो न्यूरॉन्स थे, ये हमने इनकी क्लासिफिकेशन न्यूरॉन की है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि उनका काम क्या है। अब हम क्लासिफिकेशन न्यूरॉन्स की कर रहे हैं बेस्ड ऑन शेप, कि उनकी शक्ल कैसी है। ये देखें, ये 4 किस्म की टाइप्स हैं। एक है यूनिपोलर, यानी एक सेल बॉडी है, सेल बॉडी तो हर किसी में एक ही, हर न्यूरॉन में एक ही सेल बॉडी होती है, ठीक है, और एक उसमें एक्सॉन है और उसमें कोई डेंड्राइट नहीं है, ठीक है, इसको यूनिपोलर कहते हैं। बाय द वे ये ह्यूमंस में होता ही नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट्स है ना, इंसेक्ट्स और वर्म्स वगैरह, ये उनमें होता है, ठीक है। एक है बाइपोलर, बाइपोलर की शक्ल थोड़ी सी देखें आप, ये जो बाइपोलर है, मैं जरा नीचे लेके जाता हूं, ये देखना, ये इसके सेंसरी रिसेप्टर, यानी जिसको आप क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर, ये
रिसीव करते हैं, रिसेप्टर सेंसेशन को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, यहां से इंफॉर्मेशन जाती है, ये सेल बॉडी यहाँ पे प्रोसेस होती है और आगे ये टर्मिनल एंड से यहां से निकलती है। तो ये बाइपोलर जो है ये कहां पे होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये मैं आगे चल के बताता हूं। फिर उसके बाद ये है सूडो यूनिपोलर, ये मैंने आपको बता दिया, जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन है ये सूडो यूनिपोलर है। ठीक है, ये देखें, ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, इसमें से एक फाइबर निकल रहा है। तो सूडो का मतलब होता है फाल्स, झूठा, यूनि का मतलब होता है एक झूठा, यानी ये एक्चुअली एक झूठा, इसलिए इसको कहते हैं एक झूठा पोलर, एक झूठा एक पोल वाला, सूडो यूनिपोलर। एक्चुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बेबी अभी मां के पेट में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये इसका एक नहीं होता, ये दो फाइबर्स होते हैं। वो दो फाइबर्स बाद में यूनाइट हो जाते हैं। यहां पे ये दो थे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये यूनाइट हो गए, यूनाइट होके एक बन गया। तो इसलिए इसको सूडो यूनि कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली दो थे ये अब झूठा एक है। तो उसके बाद ये यहां से बाइफरकेट हो गया, एक ये इधर चले गए टर्मिनल एंड्स, और ये इधर मैं आपको दिखाता हूं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स। एक्चुअली ये सारा एक एक्सॉन है, इसमें टर्मिनल एंड्स हैं ही कोई नहीं। ये एक एक्सॉन जो है, एक फाइबर जो है, इस तरफ से इसके सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, यानी यहां से ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और ये फिर इससे होती हुई, सेल बॉडी से होती हुई यहां पे इंफॉर्मेशन जो है पहुंच जाती है, ये इसके टर्मिनल एंड्स हैं। तो यहां से फिर नेक्स्ट अगले न्यूरॉन में वो ये जो आपको ये ऊपर जो ये आ रहे हैं नजर, स्वेलिंग स्ट्रक्चर्स, यही वो जो है जिनको मैंने कहा था साइनेप्टिक नॉब्स, ये साइनेप्टिक नॉब्स हैं, इनके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। ठीक है, तो ये यहां से फिर ये रप्चर करेगा साइनेप्टिक वेसिकल, तो उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स निकलेंगे और अगले नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा उसके ऊपर जाएंगे। तो ये वाला हमारा जो है सेंसरी न्यूरॉन है सूडो यूनिपोलर, ये जो हमारी जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये है वो वाला सूडो यूनिपोलर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है चौथी किस्म मल्टीपोलर, ये वो है जो मैंने आपको पहले दिखाया मेन, जो वो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन जो कि इंफॉर्मेशन मैसेज ब्रेन से लेके आता है, ब्रेन का मैसेज जो वहां पे प्रोसेस किया है, मैसेज बनाया है, वो तो बनाया है इंटरन्यूरॉन्स ने, इंटरन्यूरॉन्स ने वो मैसेज दे दिया मोटर न्यूरॉन को, इस चौथी किस्म को मल्टीपोलर को। इसके बेशुमार ब्रांचेस हैं डेंड्राइट्स की, और फिर इसका ये सेल बॉडी है और नीचे ये आपका एक्सॉन है, ये देखें एक्सॉन के टर्मिनल एंड से। तो ये वाला वो है जो मैंने आपको पहले जिसके पार्ट्स दिखाए थे। तो ये मोटर न्यूरॉन है ये, ठीक है, मल्टीपोलर जो है, और सूडो यूनिपोलर जो है ये सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, और बाइपोलर जो है ये मैं बताता हूं आपको कहां पे होता है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं और इनको पढ़ते हैं। द टर्म्स मल्टीपोलर, bipolar and pseudo unipolar describe the number and arrangement of processes extensions arising from the cell body, जिसको सोमा भी कहते हैं, ऑफ ए न्यूरॉन, कि ये सेल बॉडी है उसमें से कितनी एक्सटेंशंस निकल रही हैं ये बताता है आपको। ठीक है, ये सेल बॉडी है, इसमें से देखो कितने मल्टीपोलर, इसलिए कि बेशुमार डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, एक्सॉन निकल रहे हैं। और ये यूनिपोलर सूडो, झूठा यूनिपोलर, ये एक ही है और इसलिए इसको यूनिपोलर कहते हैं कि इसकी सेल बॉडी से एक निकल रहा है। और ये बाइपोलर इसलिए है कि इसकी सेल बॉडी से ऊपर की तरफ एक जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। और ये यूनिपोलर है
कि इसकी सेल बॉडी से एक ही फाइबर निकल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसकी बेस पे वो कहता है कि हमने इनको नाम दिए हैं। अच्छा जी, अ सिंपल वे टू रिमेंबर जी, याद रखना, मल्टीपोलर जो मैंने आपको बताया था, आपका मोटर न्यूरॉन जो आपने मेन देखा है वो मल्टीपोलर है। मैनी रिसीवर यानी बहुत सारे डेंड्राइट्स, वन ट्रांसमीटर, एक एक्सॉन है जो ट्रांसमिट करता है आगे मैसेज को, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी है मोटर न्यूरॉन्स, और ये ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ठीक है। ये यहां से मैसेज को लेके आते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अच्छी, आगे है आपका बाइपोलर। बाइपोलर वो आपने देख लिया, जो वन रिसीवर एंड वन ट्रांसमीटर, जिसके बिल्कुल सेंटर में सेल बॉडी है और एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, और वो बाइपोलर है। अच्छा, ये स्पेशल सेंसरी न्यूरॉन्स आपकी रेटिना, आई के पीछे जो रेटिना होता है, वहां से जो मैसेज लेके जाते हैं, ये वो बाइपोलर जो है ना, ये बड़े स्पेशल सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। और ऑल्फैक्टरी सिस्टम, आपके नोज में स्मेल को का मैसेज जो कैरी करते हैं, वो भी ये बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। सेंसरी हैं, मगर ये स्पेशल सेंस है। जो जो आपकी बॉडी से है वो जनरल सेंस है, और ये स्पेशल सेंस है रेटिना से, आंख से यानी नाक से, एंड इनर ईयर। इनर ईयर देखें, एक आउटर ईयर होता है, एक मिडल ईयर, इनर ईयर। इनर ईयर में क्या होता है, कॉक्लिया, ठीक है, और वेस्टिब्यूलर, कॉक्लियर और वेस्टिब्यूलर इंफॉर्मेशन, यानी आपके एक तो सुनने का की सेंसेशन जो है वो, उसको जो कैरी करना है ब्रेन तक, वो ये बाइपोलर लेके जाएगा, और एक आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना है, कॉक्लिया जो होता है आपकी इनर ईयर में, एक फ्लूइड उसके अंदर होता है, तो वो उस बैलेंस को भी मेंटेन करना है, तो वो वाली सेंसेशन जो है वो भी ब्रेन को ये बाइपोलर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इस जगह पे होते हैं और कहीं नहीं होते बाइपोलर। सूडो यूनिपोलर मैंने बता दिया आपको कि वन प्रोसेस, एक ही लंबा सा फाइबर है, दैट इमीडिएटली स्प्लिट्स इनटू टू ब्रांचेस, वो उससे सेल बॉडी से निकला और स्प्लिट हो गया, एक नीचे को और ऊपर को, ठीक है। वन गोज टू द बॉडी रिसेप्टर, ये एक तो बॉडी को चला गया, ये रिसेप्टर है, ये रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन। दी अदर गोज टू द स्पाइनल कार्ड, दूसरा जो है वो स्पाइनल कार्ड में आ गया, ठीक है। मैसेज उन्हें स्पाइनल कार्ड को देना है तो वो स्पाइनल कार्ड में आ गया। एग्जाम्पल, जनरल सेंसरी न्यूरॉन्स, ये जो हमारे जिनको हमने सेंसरी न्यूरॉन्स कहा है, ये सारे सूडो यूनिपोलर होते हैं, ठीक। और डार्सल रूट एंड क्रेनियल सेंसरी गैंग्लिया, ये जी डार्सल रूट गैंग्लियन और क्रेनियल सेंसरी गैंग्लियन, ये क्या है, ये मैं इसके ऊपर बाद में एक लेक्चर दूंगा। गैंग्लियन, आप ये समझें कि गैंग्लियन आपके नर्वस सिस्टम में एक टर्म है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज। सेल बॉडीज, एक्सॉन इसमें शामिल नहीं, सेल बॉडीज का एक क्लस्टर होता है, बहुत सारी सेल बॉडीज एक जगह पे गुच्छा बना होता है, उसको गैंग्लियन कहते हैं, और उसका प्लूरल है गैंग्लिया। देखें, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, यहां से जो भी नर्व निकलती है वो आपकी लेग्स को जाए, स्पाइंस को जाए, इधर जाए, ठीक है। जो भी नर्व निकलती है, ठीक है, या जो भी नर्व, सेंसरी नर्व आप कहें कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आती है या एंटर होती है, या एक्चुअली तो ब्रेन और स्पाइन जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, यहीं से सारी नर्व्स निकलती है। तो जो नर्व भी निकलती है, हर नर्व जो है वो आपकी ये जो स्पाइनल
कॉर्ड है ना, ये स्पाइनल कॉलम जो है, जिसको आप स्पाइन कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, इसकी जो बैक साइड है ना, बैक साइड, इसके नीचे इसको कहते हैं डॉर्सल रूट। तो यहां पे जो भी स्पाइनल नर्व निकलेगी, उसके उस स्पाइनल नर्व में जितने भी न्यूरॉन्स होंगे, उन सब की सेल बॉडीज का क्लस्टर इस जगह पे बना होगा, उसको कहते हैं डार्सल रूट गैंग्लियन। हर पेरिफेरल नर्व जो है, हर पेरिफेरल, हर सेंसरी नर्व जो है, वो उसका यहां पे बना होगा, आपका डॉर्सल रूट गैंग्लियन उसको कहते हैं। वहां पे क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज बना होगा, और बाकी जो नर्व होगी ना, सारी आपके फुट तक जाएगी यहां से, उसमें सेल बॉडी नहीं होगी, टोटल एक्सॉन्स का क्लस्टर होगा, बंडल ऑफ एक्सॉन्स जाएगा। उनकी सेल बॉडीज जो हैं वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन में ही रहेंगी, वहीं पर रहेंगी। ठीक है, तो इसी तरह कुछ नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स जो है ना, जिस तरह एक वेगस नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है, ये इनके भी ब्रेन के बाहर, ये नर्व्स जो हैं, ब्रेन आउटसाइड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर नहीं, ब्रेन के बाहर गैंग्लियन होता है, उसको सेंसरी गैंग्लियन कहते हैं। वहां पे सारी सेल बॉडीज होती हैं, और ब्रेन के अंदर सिर्फ एक्सॉन जाता है, सेल बॉडीज जो हैं वो बाहर होती हैं, और वो सेंसरी गैंग्लियन कहते हैं। तो डार्सल रूट गैंग्लियन में कौन सी सेल बॉडीज होंगी? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, उनकी सेल बॉडीज। और सेंसरी गैंग्लियन जो है आपकी क्रेनियल नर्व्स का, उसमें जो सेल बॉडीज होंगी, वो जो क्रेनियल नर्व्स हैं, जो आपके ब्रेन से निकलती हैं, सारी क्रेनियल नर्व्स, उनके आउटसाइड द ब्रेन जो गैंग्लियन होगा, उसको सेंसरी गैंग्लियन कहेंगे, और उसमें सारी सेल बॉडीज होंगी, एक्सॉन्स नहीं होंगे, एक्सॉन्स अंदर होंगे ब्रेन। ठीक, तो ये फॉर द टाइम बीइंग आप सिर्फ, चूंकि ये एक टर्म आई थी, इसको इतना ही समझें। तो ये आपके जो सूडो यूनिपोलर जितने भी न्यूरॉन हैं, इनकी मैंने एग्जांपल दी है कि ये न्यूरॉन्स जो हैं, ये दो पार्ट्स होते हैं, यानी एक सूडो आपका वो फाइबर निकलता नजर आ रहा है, वो फिर दो हिस्सों में हो गया, एक नीचे को, एक ऊपर को। ठीक है, एक जो है वो रिसेप्टर हो गया, यानी वो सेंसेशन रिसीव करेगा, और दूसरा वही मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को देगा, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चला जाएगा। मगर इस न्यूरॉन का, इस न्यूरॉन की जो सेल बॉडी आपने देखी, वो कहां पे होगी? वो सेल बॉडी मैंने कहा था डॉर्सल रूट गैंग्लियन के अंदर होगी। डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी मैंने आपको बता दिया, पोस्टीरियर साइड पे, इसको डॉर्सल साइड कहते हैं, आगे जो है वेंट्रल साइड है या एंटीरियर साइड। तो ये पोस्टीरियर साइड पे नीचे, यहाँ पे आपकी, जहाँ पे बैकबोन खत्म होती है, वहां पे वो जहां से वो निकलती है नर्व, जैसे शियाटिक नर्व है और नर्व्स निकलती हैं बेशुमार, वो जो नर्व निकलती है, वो जहां से निकलती है, निकलते ही आपकी स्पाइन के बाहर, वहां पे वो क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज बना होता है, जिसको डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो जनरल सेंसरी न्यूरॉन्स है ना, ये जो लेके जाते हैं इंफॉर्मेशन, ये इनकी सेल बॉडीज सारी जो हैं वो एक क्लस्टर में जमा होती है। ठीक, अच्छा जी, अब आते हैं आगे नर्व कि नर्व क्या होती है, व्हाट इज अ नर्व। अब न्यूरॉन्स हमने पढ़ लिए, न्यूरॉन की दो तरह की टाइप्स थी, एक फंक्शन के बेस पे और एक उनकी शेप की बेस पे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि नर्व क्या है। नर्व है जी बहुत सा, अ बंडल ऑफ मेनी एक्सॉन्स। एक्सॉन्स को नर्व फाइबर्स भी कहते हैं, फाइबर धागा होता है ना, तो वो धागा सा ही होता है न्यूरॉन। एक्सॉन क्या होता है, इसलिए उसको नर्व फाइबर्स
कहते हैं एक्सॉन्स को। अ बंडल ऑफ मेनी एक्सॉन्स रैप्ड इन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में रैप होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अ बंडल ऑफ मेनी एक्सॉन्स क्यों लिखा उसने नर्व को? उसमें तो सारे न्यूरॉन्स होते हैं, सिर्फ एक्सॉन्स क्यों लिखा? क्यों न्यूरॉन क्यों नहीं लिखा? अ बंडल ऑफ मेनी न्यूरॉन्स क्यों नहीं लिखा उसने नर्व को? ये जो नर्व आपकी सारा मैसेज लेके आती है, मैसेज को लेके जाती है, मोटर नर्व है, सेंसरी नर्व है, तो बंडल ऑफ न्यूरॉन्स क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि न्यूरॉन के अंदर तो सेल बॉडी भी है और नर्व के अंदर तो सेल बॉडी नहीं है, वो सेल बॉडी तो गैंग्लियन में है, ठीक है। तो उस न्यूरॉन की सेल बॉडी तो नर्व के अंदर गई नहीं, वो तो रहेगी गैंग्लियन में। उसके नर्व के अंदर तो सिर्फ आपके एक्सॉन्स गए हैं, तो वो बेशुमार एक्सॉन्स का बंडल जो है वो नर्व के अंदर चल रहा है और वो रैप्ड है, लपेटा हुआ है किसमें? कनेक्टिव टिश्यू में। याद रखना, ये कनेक्टिव टिश्यू और चीज है और माइलिन शीथ और चीज है। जो माइलिन शीथ है वो तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इनके ऊपर शिवान सेल्स ने अपनी मेम्ब्रेन को लपेटा होता है, ठीक है। तो वो माइलिन शीथ है। मगर कनेक्टिव टिश्यू उसके ऊपर एक होता है एंडोन्यूरियम, बहुत बारीक एक कनेक्टिव टिश्यू है जो उसके ऊपर लपेटा होता है, उस माइलिन शीथ के ऊपर, एक एक्सॉन के ऊपर, उसको कहते हैं एंडोन्यूरियम। और अगर बहुत सारे एक्सॉन्स इकट्ठे कर लें तो बहुत सारे एक्सॉन्स का जो बंडल है उसको कहते हैं फेसिकल। फेसिकल देखें, वेसिकल नहीं, फेसिकल। फेसिकल के ऊपर फिर एक कनेक्टिव टिश्यू लपेटा होता है, उसको कहते हैं पेरिन्यूरियम। यानी ये एक एक्सॉन के ऊपर जो होता है उसको, यानी ये माइलिन शीथ के ऊपर होता है, माइलिन शीथ के ऊपर होता है एक एक्सॉन के ऊपर, वो एंडोन्यूरियम होगा। बहुत सारे एक्सॉन्स इकट्ठे कर ले बंडल, उनके ऊपर जो लपेटा होगा वो होगा पेरिन्यूरियम। और अगर बहुत सारे फेसिकल्स इकट्ठे करके एक नर्व बना दें और वो पूरी नर्व के ऊपर लपेटा हुआ हो कनेक्टिव टिश्यू, तो उसको कहेंगे एपिन्यूरियम। तो ये देख लें आप कि जो नर्व है उसकी कितनी तहें हैं, लेयर्स कितनी। सबसे पहले एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ के ऊपर एंडोन्यूरियम है, फिर फेसिकल्स बनते हैं, बंडल्स। एक बंडल बन गया पूरा बहुत सारे न्यूरॉन्स का, तो वो फेसिकल बन गया। अब फेसिकल के ऊपर फिर एक लेयर है पेरिन्यूरियम की, ठीक है। अब ये बहुत सारे फेसिकल्स जो हैं, जब उनको आप उनका बंडल बनाएंगे तो वो पूरी नर्व बन जाएगी, तो उसके ऊपर फिर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, दैट इज एपिन्यूरियम। तो आप देखें कि जो एक नर्व है उसकी उसको अगर ऑर्गेनाइज करें तो एक्सॉन से बाहर की तरफ अगर आप ट्रेवल करें, छोटे से बड़े की तरफ, एक्सॉन जो है उसकी डायमीटर कम है, फिर जब उसके ऊपर माइलिन शीथ आती है उसका डायमीटर बढ़ जाता है, फिर उसके ऊपर एंडोन्यूरियम आता है, फिर फेसिकल बनता है, फिर पेरिन्यूरियम आता है, फिर फेसिकल इकट्ठे होकर नर्व बनती है, फिर एपिन्यूरियम आता है। तो ये कितनी लेयर्स हैं, तो तब जाके एक नर्व बनती है जो मैसेज लाती है बॉडी से और बॉडी में लेके जाती है। अगर सेंसरी नर्व होगी तो मैसेज लेके आएगी, अगर मोटर नर्व होगी तो लेके जाएगी। और एक मिक्स्ड नर्व भी होती है, एक ही नर्व के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी चल रहे हैं, सेंसरी एक्सॉन्स और मोटर एक्सॉन्स भी उसी में चल रहे हैं, एक ही नर्व में, वो मिक्स्ड नर्व होती है। तो नर्व्स तीन तरह की होती हैं, ठीक है, एक सेंसरी, एक मिक्स्ड, सॉरी एक सेंसरी, एक मोटर और तीसरी मिक्स्ड। सेंसरी नर्व जो सिर्फ वो वाले एक्सॉन्स जिसमें होते हैं जो मैसेज लेके आते हैं स्पाइनल कार्ड की तरफ, और मोटर नर्व वो होती है जो स्पाइनल कार्ड से और ब्रेन से मैसेज वापस बॉडी में लेके जा रही होती है, वो मोटर नर्व है। और एक मिक्स्ड नर्व है, यानी एक ही नर्व है उसके अंदर ही दोनों
तरह के एक्सॉन्स हैं, सेंसरी एक्सॉन्स भी, मोटर एक्सॉन्स भी, एक ही नर्व के अंदर, वो मिक्स्ड नर्व, ठीक है। और याद रखना स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में कोई नर्व नहीं होती, ठीक है, नर्व नहीं होती। वो जो न्यूरॉन्स का बंडल चल रहा है ना, विच इज रनिंग डाउन इन द स्पाइनल कार्ड, उसको ट्रैक्ट कहते हैं ब्रेन में भी। यानी ये जो आपका है ना ब्रेन स्टेम यहां पे और आपकी स्पाइनल कार्ड में, उसको नर्व नहीं कहते, उसको ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा चलें, इसका फंक्शन क्या है जी नर्व का? कैरीज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस मैं आपको बाद में समझाऊंगा। जहां भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्व इंपल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल का लफ्ज आए, इसका मतलब मैसेज है, पैगाम जो वो लेके जा रही है। उस पैगाम को हम इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी कहेंगे, नर्व इंपल्स भी कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल भी कहेंगे, ठीक है। मगर होगा वो मैसेज ही, पैगाम, ठीक है, इंफॉर्मेशन ही होगी। कैरीज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड जो सेंट्रल नर्वस एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। तो नर्व का यही फंक्शन है कि जो मैसेज है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड और बाकी के बॉडी पार्ट्स, इनके दरमियान मैसेज को लेके जाना, इधर से इधर लेके जाना ब्रेन की तरफ और ब्रेन से वापस लेके जाना, बस नर्व का ये काम है, मैसेज दोनों तरफ पहुंचाना, लेके भी जाना और लेके भी आना, जिस तरह कासिद पैगाम लेके जाता है और लेके आता है। की पॉइंट, अ नर्व इज नॉट वन न्यूरॉन, याद रखना नर्व एक न्यूरॉन नहीं है, it is hundreds and thousands of axons प्लस कनेक्टिव टिश्यू। मैंने 3 कनेक्टिव टिश्यू आपको बताए हैं, ठीक है, और माइलन शीथ है, प्लस ब्लड वेसल्स। ये जो आपकी एपिन्यूरियम होती है ना, इसके अंदर बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जिन्होंने आगे कन्वे करने होते हैं, पहुंचाने होते हैं एक्सॉन को, तो वो भी है। तो ये जो नर्व है वो एक सिंगल न्यूरॉन नहीं है, ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एक्सॉन्स जो है वो उनका बंडल होता है, और उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू एंड माइलिन शीथ सब कुछ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्व लेयर्स स्मॉल टू लार्ज, ये मैं आपको समझा चुका हूं। पहले एक्सॉन आता है, फिर एंडोन्यूरियम है, फिर फेसिकल है, फिर पेरीन्यूरियम है, फिर एपिन्यूरियम है। तो ये मेमोरी ट्रिक इस तरह है कि आप इसका एक फ्लो लाइन बना लें। एक्सॉन के ऊपर एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम के बाद वो फेसिकल बन गए, बहुत सारे एक्सॉन इकट्ठे हो गए, फिर फेसिकल के ऊपर पेरीन्यूरियम आ गया, पेरीन्यूरियम फिर आपने बहुत सारे फेसिकल इकट्ठे किए, फिर एपिन्यूरियम आ गया। तो ये स्मॉल से बिग की तरफ आप जा रहे हैं, ये है जी। आगे टाइप्स ऑफ नर्व्स मैंने आपको बताया। सेंसरी नर्व्स, इनको अफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, सेंसरी नर्व्स, ये बहुत दफा बता चुका हूं। रिसेप्टर्स, ये बॉडी से, इनको रिसेप्टर्स इसलिए कहते हैं कि ये मैसेज रिसीव करती है, इंफॉर्मेशन रिसीव करती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाता है मैसेज, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जाता है। सेंसरी नर्व्स जिनको एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। मोटर नर्व्स, इनको इफरेंट, EFF, वो था AFF, यह EFF, इफरेंट नर्व, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से वापस जब बॉडी की तरफ आता है, मसल्स और ग्लैंड्स में जब वापस आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो वो मोटर नर्व्स होती हैं, ठीक है। मिक्स्ड नर्व्स, बोथ सेंसरी प्लस मोटर फाइबर्स। मोस्ट पेरिफेरल नर्व्स आर दिस टाइप। ज्यादातर जो पेरिफेरल नर्व्स है ना आपकी बॉडी में, वो मिक्स्ड है, यानी एक ही नर्व के अंदर जो मोटर और सेंसरी एक्सॉन्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं एक ही नर्व में, ठीक। न्यूरॉन वर्सेस नर्व, इनका आपस में कंपैरिजन किया कि न्यूरॉन एक सिंगल नर्व सेल होता है और नर्व क्या है, बंडल ऑफ मेनी एक्सॉन्स फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स, उसका ये बंडल है। ये न्यूरॉन हैज सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, 1 एक्सॉन, मगर जो नर्व है कंटेन्स एक्सॉन्स बट नॉट मोस्ट सेल बॉडीज। सेल बॉडीज मोस्ट
मोस्ट का लफ्ज इसलिए लिखा कि कुछ नर्व्स ऑटोनोमिक नर्व्स जो हैं उनके अंदर सेल बॉडीज होती हैं। वो बाद में आप अगर ये आपके उसमें है नहीं, बट इसके ऊपर मैं एक लेक्चर दूंगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उस पर। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये जो न्यूरॉन है ये नर्वस सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल जो है ये फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है। और नर्व जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स, जिनको आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टुवर्ड्स बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों तरफ एरो इसलिए लगाए गए हैं। अच्छा जी, वन लाइन समरी। अ नर्व इज अ केबल लाइक बंडल ऑफ मेनी एक्सॉन्स इन प्रोटेक्टिव टिश्यू मैंने बता दिया 3 टाइप्स, कैरिंग इम्पल्सेस यानी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, मसल्स, ग्लैंड्स एंड सेंस ऑर्गन्स। ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से मैसेज लाती हैं और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की तरफ मैसेज लेके जाती हैं, कहां से? मसल्स, ग्लैंड्स और सेंस ऑर्गन से। ठीक है, ये नर्व की वन लाइन समरी थी। तो ये लेक्चर काफी लंबा हो गया, मैं यहाँ पे इसको खत्म करना चाहूंगा। इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ये नर्व इम्पल्स जो है, मैसेज जो है, ये कैसे प्रोपेगेट करता है, कैसे जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।